अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री आउटलुक पे, इंडियन मार्केट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन मार्केट जो है वो मार्केट की साइज है 46 बिलियन है। उसमें एवरेज कंज्यूमर जो एज रहेगी वो 28.1 है, ये हमारा सर्वे किया हुआ है। 75% एवरेज ग्रोस मार्जिन रहेगा। उसमें INR 1500 एवरेज रेवेन्यू यूजर है, ठीक है। उसके बाद 18% रेवेन्यू इंक्रीज पर ईयर, हर साल 18% रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो उस तरह से ये पूरा मार्केट सेगमेंटेशन किया है हमने। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री जो है, द इंडियन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट अराउंड इन INR 43,000 crores, where the cafe or coffee shop business account for around 20 to 25%. The average annual growth that this industry sees is of around 30 to 35%, where the business has a lot of future potential as well, owing to the fact that the market is moving towards the urbanization at a decent place. The business of organized dining or eating out is at a factorable INR 12,000 crores annually, which means that the organized or defined options are limited to the customers, either because of the lack of an organization planning or resource management by the current players, of complete lack of knowledge in the topic, where both the cases are proved correct. In the year 2012, the restaurant industry saw unprecedented growth figures and by estimate. यहाँ पे क्या है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर हम लोग एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रॉपर R&D होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे चल के झेलने पड़ सकते हैं। और मेनली अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना का जो अभी जो हो रहा है अभी सब मार्केट में, सबको यही है कि इसके बाद मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट में कैसे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, सारी चीज़ों को कैसे फॉलो करनी होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग here comes the potential towards the development and sustainability of a complete cafe business with multiple options and working with so many factors of work. This industry holds very high opportunity factor for you, and Unique Brew is the best way to help you grab this opportunity. आप यूनिक ब्रू कैफे की फ्रेंचाइजी में आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो ये मार्केट का कस्टमर सेगमेंटेशन हमने किया है। उसमें से जैसे कि 21% नॉर्मली लोकल रेसिडेंट्स होते हैं, 36% टूरिस्ट होते हैं, 29% स्टूडेंट होते हैं, 7% ट्रैवल होते हैं, 7% लोकल बिजनेस होते हैं। की इनसाइट्स, द इंडियन फूड इंडस्ट्री इज पैक्ड एट अराउंड 2,50,000 crores at 48 billion and is growing at a rate of 25 to 30% per annum. The Indian fast food chain market is at a very primary stage, and even though the industry is valued so large, it actually contributes to less than 3% of GDP. Indian tier 2 markets and tier 3 markets are growing at the highest rate since the last decade. The eating out industry is set to double by 2025, and organized retail food will have a major chunk of this market. कंपनी के बारे में हम लोग थोड़ा बता देते हैं। यूनिक ब्रू कैफे traces its origin to mere beginning as an individual cafe in suburban town of Navsari near Surat, Gujarat. In India's shining diamond capital, the team behind Unique Brew Cafe, though of their answer to the large brand which charge exorbitantly high prices from the people and require a higher amount of investment to open. This proved way of the inception of the brand in 2010. By the end of the 2011, it had already started creating waves of curiosity among the customers, who were mostly NRIs in the where the month coming among the customers who are mostly NRIs in the winter months coming from US and UK, who saw the levels of hygiene and the range of the variety offered by the Unique Brew Cafe. तो यूनिक ब्रू कैफे जहां से शुरू हुआ था, वहां से क्या होता है कि मोस्टली एनआरआई कपल्स, एनआरआई की फुटफॉल ज्यादा था। तो उस तरह से पहले से ही हाइजीन एंड सैनिटेशन को, सारी ऑर्गेनाइज्ड को, एग्जीक्यूशन को, सारे मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हुए हमने आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक जो आउटलेट सेट किए हैं, सारे जो फ्रेंचाइज स्टोर, उसमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है कि सारे स्टैंडर्ड मेंटेन हो, सारी प्रोसीजर्स मेंटेन हो, सर्विस ऑपरेशन, उसके बाद ऑडिटिंग, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप
एग्जीक्यूशन हो. We at Unique Brew Cafe simply hold pride in the processes and system that makes us what we are, and our simple yet effective business models keep the most important thing in mind: to replicate the business story of Unique Brew Cafe across the country with associates who are willing to take the share in the development of the business along with the environment. Cafe franchise system across the country. और हमारी जो की स्ट्रेंथ है यूनिक ब्रू का, जो की स्ट्रेंथ जो है कि हम लोग क्या ऑफर करते हैं, क्या यूनिक ब्रू एग्जैक्टली क्या है, हमारी क्या प्रोडक्ट लाइन है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं. हमारी जो मेन अवर की स्ट्रेंथ जो है, जैसे कि गवर्नमेंट्स ऑफ कॉफी, बहुत सारी कॉफीज की वैरायटी है, डिलक्स ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, डिलीशियस फ्रेश एंड लोकल फूड, इटालियन कैफे एक्सपीरियंस नाउ इन इंडिया. हम लोग फ्रेश डो पिज्जा प्रिपेयर करते हैं, होममेड फ्रेश ब्राउनीज बेक्ड बाय अस ओनली. वी मेक अवर ऑन सॉसेस वगैरह भी खुद कंपनी क्रिएट करता है. वी मेक अवर ऑन ब्रेड्स खुद कंपनी बनाती है. और ये सारी चीजें आउटलेट के अंदर प्रिपेयर होगी फ्रेश, बाहर मार्केट से हमें लाना नहीं है. बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है यूनिक ब्रू की, तो ये यूनिक ब्रू जो रहेगा वो कंप्लीटली रॉयल्टी फ्री मॉडल रहेगा. उसमें आपको कंटिन्यू हेडक्वार्टर सपोर्ट मिलेगा, हर चीज में आपको, हर तरह का छोटी से छोटी चीज में आपको सब सपोर्ट मिलेगा. हर चीज में मतलब कांस्टेंट इनोवेशन एंड रिसर्च, सारी चीजों की रिसर्च होती है, छोटी से छोटी चीजें ध्यान में रख के उन पे इनोवेशन होता है, रेसिपीज होती है, प्रोडक्ट होती है, सारी चीजों का लाइक मंथली उस पर इनोवेट होता है, फिर रिसर्च होता है. हमारी R&D टीम उस पर सारा वर्क करती है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और आपका सीजनल मेन्यू भी रहेगा, फिर आपका एक फिक्स मेन्यू भी रहेगा. तो इस तरह से ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस काम करती है. ब्रांड स्ट्रेंथ यूनिक ब्रू फ्रेंचाइज सिस्टम, उसमें मैं जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट्स ऑफ कॉफीज है, मोर देन 30 different varieties of specialty coffees carefully curated, differing flavors bring strength and different regions, specialized coffee inventory sourced in required sizes, custom grind types and variety, first in chain based cafe models. फिर beverages and desserts है, largest variety in beverage and dessert, carefully curated and priced mixology based drinks है, correct pricing with reliable partners like Monin, Da Vinci, etc. Steady and reliable system, हाईली प्रेडिक्टेबल एंड हाई मार्जिन है, सारे प्रोडक्ट में आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा. फ्रेश एंड लोकल फूड, हाईएस्ट वैरायटी इन फूड प्रोडक्ट्स, लोकली सोर्स किया होता है. टेस्टेड सिस्टम फॉर मेंटेनिंग रेसिपीज एंड टेस्ट विदाउट डिपेंडेंस ऑन स्टाफ, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टाफ पे डिपेंड रहेगा, हमारा टेस्ट सिस्टम रहेगा, जो उसका फूड का फ्लेवर रहेगा वो किसी एक ही स्टाफ पे डिपेंड रहेगा. कई जगह क्या होता है कि एक शेफ रहता है, उसी पे पूरा डिपेंड रहता है, ऐसा नहीं है. अगर एक वो शेफ चला भी जाता है, दूसरा कोई आता है, तो भी टेस्ट ऐसा है कि पूरा मेंटेन रहेगा, हमने उस तरह से ऑर्गेनाइज किया है. कंप्लीट आपको हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम हेडक्वार्टर फॉर डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट एंड रेसिपीज, मैंने जो आपको पहले बताया. फीडबैक बेस्ड कस्टमाइजेशन ऑप्शन, हर कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, प्रोडक्ट में हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस चीज की सारी ध्यान रखा जाता है. बिजनेस स्ट्रेंथ अ फ्रेंचाइज सिस्टम दैट वांट्स टू सी यू विन, उसमें जैसे मैंने बताया सारी चीजें, रॉयल्टी फ्री रहेगा आपका, आपको कंटिन्यू हेडक्वार्टर सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको सब बताया. फ्लेक्सिबल रिन्यूअल ऑप्शन रहेगा, टेरिटरी प्रोटेक्शन, मास्टर फ्रेंचाइजी ऑप्शंस रहेगा, एरिया डेवलपर राइट्स अवेलेबल है. फर्स्ट प्रायोरिटी टू एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी फॉर टेकिंग अप नेक्स्ट स्टेप, जब रिन्यूअल रहेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी को देते हैं. मास्टर फ्रेंचाइजी का ऑप्शन भी उसी तरह फर्स्ट हम एग्जिस्टिंग जो यूनिट फ्रेंचाइजी तो उनसे देते हैं. हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन सप्लाई सिस्टम, केयरफुली सिलेक्टेड वेंडर्स फॉर सप्लाई एंड परचेजेस, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड बिलिंग, steady and reliable purchase system, continuous feedback and monitoring via IT based system and support, and excellent research and review of patrons, local PR and influencer support. लोकल पीआर और इन्फ्लुएंसर सपोर्ट होता है, हर जगह पे हम लोग लोकल पीआर रिक्रूट करते हैं, ताकि हम देखते हैं कि ये आउटलेट कैसा चल रहा है, आउटलेट के क्या रिव्यूज आ रही है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं. एनालिसिस ऑफ लोकल फूड एंड बेवरेज कंजप्शन, लोकल फूड जो होता है उसका कंजप्शन क्या है, उसमें क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स है, वो सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है. एडप्टिंग रेसिपीज दैट अपील्स टू कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विदाउट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एडिंग प्रोडक्ट. कस्टमर को कोई रेसिपीज बहुत पसंद आती है तो वो हम ज्यादा उसको प्रमोट करते हैं, अप सेलिंग करते हैं, और उसमें क्या रखते हैं कि उसमें देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़े ना, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले, बट और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो.
franchise opportunity for Unique Brew Cafe, India's most unique restaurant cafe brand. Unique concept of fast food cafe business clubbed into one amazing business opportunity, high margin product, constant product support by professional consulting team, 100% रॉयल्टी फ्री रहेगा आपको। ये 100% रॉयल्टी फ्री मॉडल रहेंगे, जो भी मॉडल आप चूज करोगे आपको लाइफ टाइम यूनिक ब्रू कैफे को कोई भी रॉयल्टी मंथली कुछ भी पे नहीं करना रहेगा। टेरिटरी प्रोटेक्शन रहेगा आपको, एरिया फ्रेंचाइज राइट्स दिया जाएगा, जोन राइट्स टू मल्टीप्लाई अर्निंग, अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो जोन राइट्स आप ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है हमारा फ्रॉम 12 lakhs, 10 lakhs टू 12 lakhs से हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। वो इन्वेस्टमेंट रेंज अलग अलग है, जैसे कि फर्स्ट मॉडल का 10 to 12 lakhs है, सेकंड मॉडल का 20 to 25, थर्ड का 30-35, फोर्थ का 40-50। ये हमारा अलग अलग बिजनेस मॉडल का अलग अलग इन्वेस्टमेंट रहा है विद एक्सेलेंट ROI ऑप्शंस, इजी एडमिन, मैनेजेबल वाया सेल फोन फ्रॉम एनीवेयर, लोकल सोर्स, नो हैसल्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन कंपनी सप्लाईज एंड इंक्रीज फूड कॉस्ट। आपको दूसरी फ्रेंचाइजी में क्या होगा कि आपको कंपनी से बहुत सारी चीजें आपको लेनी ही पड़ेगी। हमारी ब्रांड में ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोकल मार्केट से सोर्स करते हैं, तो आपको कंपनी के सप्लाई पे डिपेंडिंग रहना होगा और मेनली उस सप्लाई में आपको कोई मार्जिन नहीं देना होगा। तो ये मेन चीज है। फ्यूचर रेडी यूनिक ब्रू कैफे मॉडल इज द ओनली मॉडल that has all post-COVID guidelines for operations like cloud kitchen, contactless delivery and kitchen operations according to FSSAI and WHO standard, inbuilt with the SOP standard operation and procedure. Unique Brew Cafe is only the brand आपको COVID-19 के बाद कैसे किचन मेंटेन रखना है, हाइजीन कंडीशन कैसे मेंटेन रखनी है, डिलीवरी कैसे सर्विस करनी है, किचन ऑपरेशन कैसे मैनेज करने हैं, FSSAI स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करना है, WHO स्टैंडर्ड इनबिल्ट SOPs को कैसे मैनेज करनी है, वो सारी गाइडलाइंस सारी चीजें यूनिक ब्रू आपको प्रोवाइड करेगा। की टाइमलाइन एक बेसिक प्री ओपनिंग प्लानिंग का है, सिक्योर फंडिंग, फिट आउट पीरियड, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ग्रांड ओपनिंग, अचीव 200+ डेली कस्टमर्स। एक हमारा एक प्रोजेक्ट होता है कि एक टारगेट होता है कि हम 200+ डेली कस्टमर्स अचीव करें। ये प्रोसीजर है, LOBI के बाद LOI प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेआउट, ड्राइंग, प्लस बिल्डिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन, स्टार्टअप, लॉन्चिंग, रफ लॉन्च, फिर उसके बाद ग्रैंड लॉन्च, ये सारी प्रोसीजर है। दिस इज द टीम, ये टीम है यूनिक ब्रू की। आई एम द फाउंडर। उसके बाद मिस्टर रोहन भट्ट जो एक्सपांसन हेड है, ही लुक्स आफ्टर द एक्सपांसन ऑपरेशन एंड रेसिपी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें रोहन भट्ट हमारे जो एक्सपांसन हेड है वो लुक आफ्टर करते हैं। फिर मिस्टर यश भट्ट, ये ऑपरेशन हेड है यूनिक ब्रू के, ये सारी चीजें ऑपरेशन मैनेज करते हैं यूनिक ब्रू के लिए। मेरा जो मेन रोल है कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया, जैसे कि पहले बताया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर मेरा मोर देन 10 years का एक्सपीरियंस है। तो मैं एक्चुअली मेरा जो काम है वो मैनेजमेंट ऑफ डेली ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्किंग एंड प्रिपरेशन ऑन अ डेली बेसिस। मेरा जो बोलते हैं ना कि किचन, मेरा जो लाइक डिटेल इन द किचन हेल्प्स डिफाइन द सेपरेट टेस्ट एंड डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी ऑफ यूनिक ब्रू कैफे। यूनिक ब्रू कैफे का जो टेस्ट है उसको कैसे दूसरे ब्रांड से अलग दे, हम लोग क्या अलग कर सकते हैं, वो मेरा मेन काम है। ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज हेल्प्स इन मैग्नीफाइंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। मार्केट के हिसाब से हमें जो टेस्ट डेवलप करना है, कस्टमर के हिसाब से हमें जो फूड का टेस्ट देना है, आई लुक आफ्टर दैट। आई एम ऑल्सो द हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन एट यूनिक ब्रू फ्रेंचाइज सिस्टम। यश भट्ट जो है ऑपरेशन हेड है, हेड ऑफ मार्केटिंग है। He is a seasoned operations and marketing professional. His methodological approach to everything that matters to business, like the consumer perception, demand patterns, projection, buying decision, ये सारी चीज, जैसे कंज्यूमर परसेप्शन क्या रहेगा, डिमांड पैटर्न क्या रहेगी, प्रोजेक्शन क्या रहेगा, बाइंग डिसीजन, ये सारी चीजें उन मिस्टर यश भट्ट करते हैं। He takes care of operation, marketing, यूनिक ब्रू, make sure that business that associate with have their work done। आप जो एसोसिएट हो रहे हैं यूनिक ब्रू के साथ, आपको सारी चीजें अच्छे से मिल रही है, आपको आप सेटिस्फाई हो, ये लुक आफ्टर करना मिस्टर यश भट्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिस्टर रोहन भट्ट, ही इज अ फ्रेंचाइज एंड हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग प्रोफेशनल विद ओवर अ डिकेड ऑफ ऑन हैंड एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग एंड sustaining franchise brand across India. He has headed the expansion and franchise part of various brands. इन्होंने बहुत सारे
फ्रेंचाइज खुलवाए हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस मैनेज किए हैं। ये खुद भी शेफ है, सारी चीज़ों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनका पूरा हाथ है। ये पूरी किचन में कैसे डेवलप करते हैं, नई रेसिपीज इंट्रोड्यूस करते हैं, ये पूरा मिस्टर रोहन भट्ट का काम है। इंडस्ट्री मूवर, लेट्स हैव अ लुक इंडस्ट्री मूवर, जैसे कि स्टारबक्स इंटरनेशनल, कैफे कॉफी डे, अदर लोकल ब्रांड। उसमें यूनिक ब्रू का क्या है कि विद सो मेनी पीपल डूइंग दिस, हर कोई एक टाइप का बिजनेस कर रहा है मार्केट में, तो यूनिक ब्रू ऑफर कर रहा है यूनिक बिजनेस मॉडल with local operation efficiency at the core structure of its franchise system. The dynamic model is customized on the basis of market. मार्केट के हिसाब से ही पूरा मॉडल हम लोग डिजाइन किया है, और मार्केट के हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यही एक्चुअली एथिक्स है कि मार्केट जैसा वैसा ही हमें रहना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छे से हम प्रॉफिट ले पाएंगे। फंड चार्ट, ये एक आपको एक सिर्फ रफ आइडिया है कि कैसे आपका एक्सपेंसेस रहेगा, इनिशियल आपका पेमेंट कैसा रहेगा, मिसलेनियस कॉस्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल आपका, मार्केटिंग, लीज डिपॉजिट, FF&E, इम्प्रूवमेंट्स, रिटेल बिजनेस एश्योरेंस, कॉफी सप्लाईज, इन्वेंट्री, ये सारी आपका फिक्स स्टार्टअप एक्सपेंसेस आपको थोड़ा दिया है कि आपको थोड़ा आइडिया मिले। शॉर्ट एनालिसिस क्या है, जैसे कि एक्सपीरियंस ऑपरेशन टीम है, हमारी टीम जो है वो कॉम्प्राइज ऑफ द पीपल विद हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले हमारी टीम है, एंड बैकग्राउंड इन हॉस्पिटैलिटी है, सर्विस एंड ऑपरेशन, सारे लोगों ने हॉस्पिटैलिटी में काम किया है, तो सब लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हमारी स्ट्रेंथ मेन वही है कि हम लोग ने खुद इंडस्ट्री में काम किया है, हम लोग ऐसे कि इंडस्ट्री नॉन बैकग्राउंड वाले लोग नहीं है, सारी टीम है वो सारे इंडस्ट्री में रह चुकी है, बहुत एक्सपीरियंस है। वेल इक्विप्ड एंड R&D डिवीजन, बहुत ही अच्छा हमारा, द कांस्टेंट एफर्ट्स ऑफ R&D एट आवर हेडक्वार्टर इंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन्स एंड मॉडिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर प्रोडक्ट का टाइम टू टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, हेडक्वार्टर इंश्योर करता है कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद जो प्रोडक्ट लाइन है उसका मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम होता है। एक ही रेसिपी, जैसे कि हमने 6 मंथ एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमेशा रहेगा, उस पर पूरा मॉडिफिकेशन होता रहेगा। कंटिन्यूसली अपग्रेडेड प्रोडक्ट लाइन, एज आई सेड, हर चीज में आपको कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपको सीजनल मेन्यूज मिलेंगे, उसके बाद हर सीजन में जो अलग अलग मेन्यू रहेगा, हर एक प्रोडक्ट नया नया लॉन्च होगा। रेडी टारगेट ऑडियंस है, अपॉर्चुनिटी, लार्ज पोटेंशियल मार्केट, वाइड रेंज ऑफ मेन्यू लाइन, आपको बहुत अच्छी मेन्यू लाइन मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉफीज, फास्ट फूड, फाइन डाइनिंग। रेडी टारगेट ऑडियंस, द इंडियन कंज्यूमर रिटेल मार्केट इज करंटली वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मार्केट। इंडिया का जो मार्केट है करंटली थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, बिहाइंड US एंड चाइना। इट्स एक्सपेक्टेड कि 2020 to 21 में वो सेकेंड स्टेज पे आ जाए। डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो गैप है, द डिमांड बोथ एक्चुअली एंड latent is huge, but the supply is limited. Another major aspect is the lack of the presentation in the real market of India, the small towns where the spending power lays unattended. Franchising enables Unique Brew to reach places where no other brands can possibly plan roll out in the foreseeable future. हमने मार्केट को पूरा स्टडी किया है, मार्केट के हिसाब से, जैसे कि लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है, जैसे कि सूरत का मार्केट अलग है, मुंबई का मार्केट अलग है, दिल्ली का मार्केट अलग है, बेंगलोर का मार्केट अलग है, हर मार्केट की स्पेंडिंग कैपेसिटी, लोकालिटी, कस्टमर सब अलग रहेंगे, तो उस हिसाब से मेन्यू डिजाइन रहेगा, उस हिसाब से आपकी प्राइस रेंज रहेगी, उस हिसाब से आपका इंटीरियर डिजाइन रहेगा। तो ये सारी चीजों को हमने ध्यान में रखा है। Place, the strategy of Unique Brew Cafe is to open its various cafe models in the vicinity of high street, family entertainment centers, near colleges, colleges के नजदीक में, हाई स्ट्रीट पे फैमिली एंटरटेन जोन हो, जैसे कि थिएटर के नजदीक में। गिव द एडवांटेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इन इफेक्टिवनेस टू द मैक्सिमम डिग्री। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी एक बहुत अच्छा एक जरिया है सेल्स को बढ़ाने के लिए। प्रमोशन, Unique Brew Cafe has plans for 360-degree involvement in all the areas of serious consumer passion like television marketing, कैसे होता है टेलीविजन, एक
मार्केटिंग का सोर्स है, सेल्स प्रमोशन। यूनिक ब्रू कैफे हैज इट्स ओन वर्जन ऑफ ब्रांडेड consumer card known as the Unicard, which gives the customers a choice to be able to visit more and play less than favorite cafe. यूनिक ब्रू ने हमने एक कार्ड, जैसे कि यूनिकार्ड, उसमें क्या रहता है कि आपने कहीं पे आप में से कई लोगों ने देखा होगा, वो कार्ड उसको क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो कैफे में बंदा आता रहेगा और उसको पेमेंट लेस करना पड़ेगा और उसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो वो एक तरह से बहुत अच्छी मार्केटिंग प्रोसेस है। उसके बाद लॉन्चिंग के टाइम पे भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं। लॉन्चिंग के टाइम पे फर्स्ट 200, 300, 500 कस्टमर्स को हम कुछ कूपन सिस्टम देते हैं ताकि उनको काफी डिस्काउंट मिले। तो बहुत अच्छे हमारे प्लान्स हैं ओपनिंग के टाइम के भी। प्रोसेस, द ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस इज केप्ट विथ फुल सर्विस एट यूनिक ब्रू फॉर ऑल द बिजनेस मॉडल्स। ये हमने थोड़ा लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया है। लोगों के क्या कहती है लोगो, इमेज एंड ब्रांड, आर्किटेक्चर एंड डेकोर, लिटरेचर, लोगों का जो सारी क्या क्या लोगो में डिजाइन किया हुआ है, लोगों में क्या एथिक्स है, ये सारी चीजें इसमें डिजाइन किया है। मार्केट सेगमेंटेशन जो किया है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन, we make the visit to your neighborhood cafe an experience and provide a special experience to chosen segment. Unique Brew has estimated that presently 38% of the footfall in its outlet belongs to students between the age of 15 to 24 years. हमने एक सर्वे किया है कि ज्यादातर जो हमारे जो टारगेट ऑडियंस रहेंगे वो रहेंगे कि स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि रेगुलर कैफे जो मॉडल है, ए मॉडल, उसमें क्विक है, अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है, उसका टारगेट मार्केट रहेगा स्टूडेंट, यूथ, कॉफी लवर्स। फास्ट फूड कैफे है बी मॉडल, उसमें वेराइटी इन फ्रेश फूड, एम्बियंस, म्यूजिक, मल्टी सेगमेंट, पर्सनल। इटालियन कैफे मॉडल है कैजुअल डाइनिंग, इटालियन रेस्टोरेंट विद कैफे। मीडियम एज से लेके फैमिली मेंबर्स आएंगे वहां पे, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स भी आएंगे, टारगेट मार्केट वो है हमारा। फिर स्पोर्ट्स लाउंज कैफे डी मॉडल, एम्बियंस, थीम, वेराइटी, स्केल ऑफ ऑपरेशन, मल्टी सेगमेंट, पर्सनल एंड कॉर्पोरेट। तो ये एक मार्केट को हमने अच्छे से स्टडी करके सेगमेंटेशन दिया है कि कौन से कस्टमर, कौन सी एज ग्रुप के लोग कौन से मॉडल में ज्यादा आते हैं। ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी फ्रेंचाइजी की। लॉन्च प्रमोशन जो रहेगा, जैसे कि प्री लॉन्च रहेगा, साइट आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन रहेगा, हायरिंग पर्सनली असिस्टेंट बाय हेडक्वार्टर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो रहेगा हमारा, वो आपको मार्केट में स्टडी करके जो रिक्रूटमेंट करना है, स्टाफ सपोर्ट देना है, आपको शेफ सपोर्ट देना है, वो यूनिक ब्रू आपको देगी सारा। बरिस्ता सपोर्ट, स्टाफ सपोर्ट, शेफ सपोर्ट, सारी चीजें आपको यूनिक ब्रू की ओर से मिलेगी। फिर assistant from headquarter human resources division for the short listing of the candidate profile, interviews for the shortlisted candidate by the franchisee, selection of the candidate। ये एक हायरिंग प्रोसेस है। ये टैक्सेस एंड कॉम्प्लायंसेस दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में एक, जब आपका कैफे ओपन होता है उसके बाद आपको सारी चीजें डिटेल में समझाई जाती है कि टैक्सेस एंड कॉम्प्लायंसेस कैसे काम करता है, बिलिंग कैसे मेंटेन होता है, ये सारी चीजें होती है। टेस्टिंग द ब्रांडिंग एंड द डिलीशियस यूनिक ब्रू कॉफी फ्लेवर्स। ये यूनिक ब्रू एक्सपांशन टीम के बारे में कि कैसे आपको LOBI साइन करके, फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके, टोकन अमाउंट पे करके, एग्रीमेंट साइन करके, फिर आपका साइट सिलेक्शन होता है। फिर आपका, अगर आपके पास कोई शॉप या कोई जगह नहीं है तो हम लोग आपको ढूंढ के देते हैं। कंपनी हेल्प्स यू टू फाइनलाइज द लोकेशन। उसके बाद आपको लेआउट प्लान्स दिए जाएंगे, इंटीरियर मैनेजमेंट सब किया जाएगा। उसके बाद इक्विपमेंट ऑर्डरिंग किया जाएगा। उसके बाद एक लॉन्च होता है, फिर एक ग्रैंड लॉन्च होता है, फिर आप पूरा बिजनेस सेट करके आपको हैंड ओवर दिया जाता है। तो ये एक कंपनी का पूरा प्रेजेंटेशन था। तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है। यूनिक ब्रू और स्क्वायर कंसल्टिंग जो है वो इज द ऑफिशियल फ्रेंचाइज एंड ऑपरेशन पार्टनर ऑफ यूनिक ब्रू हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर रोहन भट्ट का नंबर और ईमेल आईडी है, कंपनी का ईमेल आईडी नंबर दिया हुआ है। तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अब मैं आपको यूनिक ब्रू की प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि यूनिक ब्रू की फ्रेंचाइजी आपको, लाइक व्हाई शुड यू गो फॉर यूनिक ब्रू फ्रेंचाइजी।
हेलो। Yes, sir. ये like what happened? I'm not able to share the screen. शेयर हो रहा है सर, स्क्रीन शेयर है। अच्छा, अच्छा, okay, हाँ, yes, I got it. Okay. Hi friends, that was a wonderful insight given by Mr. Nirav ji, the founder and the CEO into the food and beverages, which is royalty-free brand. At the same time, they have 360-degree support. So guys, trust me, it is one of the good opportunity. I'm sure you would not like to miss. So if you have any questions, please ask it directly with the founder himself. You can Yeah, raise your hand on the chat section and ask yeah. questions. Okay, before the question answer start, I have few more things to discuss. So, is the screen visible? Yes, sir, it Hello. is. Please go ahead. ओके। तो आप सबके मन में लाइक यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम लोगों को यूनिक ब्रू की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, इसमें क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है, क्या ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको यूनिक ब्रू हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड अबाउट अस, हमारा जो कंसेप्ट है, जैसे कि comforting, unique, charming, freshly made food go together with the aromatic coffees and beverages at every Unique Brew cafe to create a new concept that will renew the whole idea that the people and the industry have about making food and enjoying coffee. The new concept created by Unique Brew Cafe is currently is the most innovative, appealing, and original coffee concept in India. Our aim is to provide an authentic Italian cafe experience. Coffees, authentic international fast food products. There is a relaxing atmosphere in every store. The Unique Brew philosophy is very simple: coffee, atmosphere, food, service, and appetitive time are the key elements to our business, and excellence in all five areas is required in order to achieve our aim. Italian cafe experience now in India. फ्रेश डो पिज्जा हमारी जो मोनोपोली है, फ्रेश डो पिज्जा, होममेड फ्रेश ब्राउनीज, होममेड फ्रेश डेजर्ट, हम लोग डेजर्ट्स भी बनाते हैं। वी बेक अवर ओन ब्रेड्स, वी मेक अवर ओन सॉसेस, सारे सॉसेस भी हम खुद ही क्रिएट करते हैं। आपको वेंडर पे या कंपनी सप्लाई पे डिपेंड नहीं रहना है। कंपनी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, रेसिपीज है सारी चीजों की, जो हमारे शेफ, हमारे कुक जो रहेंगे वो रेस्टोरेंट में खुद बना के प्रिपेयर करेंगे, सारी चीजें फ्रेश। Benefits of becoming Unique Brew franchise. Why to take a franchise of Unique Brew Cafe? So a robust model with a high commercial viability, capitalizing on the shift towards affordable luxury and lifestyle spending. A young and vibrant Indian company with the vision and passion for food in all its forms, and a pace of growth towards the wide and adapted market, untapped market. A well-recognized business format that has a strong and wide consumer appeal, high quality, attractive product line, and a unique cafe come dining experience, a solid operations models and secure position as one of India's leading cafe and food concept, highly tuned, tried and tested systems, removing the scope for speculation in the business for franchise partners. A culture of shared success, all respect, putting our franchise partners first by believing in their success. हम लोग ये बेसिस पे काम करते हैं कि हमारे फ्रेंचाइजी जो है, हम हमसे जो भी यूनिक ब्रू का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वो यूनिक ब्रू के फ्रेंचाइजी के जो क्लाइंट है, दे शुड अर्न फर्स्ट, उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। उनको अगर वो लोग कमाएंगे तो ऑब्वियसली कंपनी का ग्रोथ होगा। तो हमने इसीलिए रॉयल्टी फ्री मॉडल रखा है कि क्या होता है कि आप कैफे स्टार्ट करते हो, कोई भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हो और आपको दूसरे तीसरे महीने से आपको रॉयल्टी देनी होती है। तो वो एक बहुत ही बोलते हैं ना कि आप पे बहुत भारी पड़ता है। आपको रॉयल्टी पे करना इज लाइक, आपको खुद सोचेंगे कि जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कई ब्रांड्स में कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर भी आपको उनको रॉयल्टी पे करनी ही रहेगी, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप उनको ये नहीं बता सकते कि हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको रॉयल्टी मत लो। तो यही मेन चीज, क्लाइंट की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने रॉयल्टी फ्री मॉडल रखा है, अनकंडीशनली। आपको
उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आपको नहीं देना है मतलब नहीं देना है रॉयल्टी, इट्स अ रॉयल्टी फ्री। उसके बाद और प्रोफेशनल रेप्यूटेबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ऑपरेशन, हमारे पास बहुत ही अच्छी ऑपरेशन मैनेजमेंट की टीम है, रेप्यूटेबल है, एक्सपीरियंस है, जो सारी चीज बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करेंगी, ऑपरेशन मैनेजमेंट करेगी। अब बिजनेस मॉडल दैट इज एज आई सेड रॉयल्टी फ्री अनकंडीशनली। फ्रेंचाइज सपोर्ट आपको जो मिलेगा वो ये रहेगा कि मार्केटिंग सपोर्ट, एडवाइजरी एंड इम्प्लीमेंटेशन, आपको सारी चीज एडवाइस दी जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा, ऑनगोइंग ऑपरेशन सपोर्ट, हर चीज में ऑनगोइंग ऑपरेशन सपोर्ट रहेगा, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग रहेगी, हर चीज को प्री ओपनिंग और पोस्ट ओपनिंग की एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कंपनी करेगी, प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, कैसे प्रमोट करना है बिजनेस को, पब्लिसिटी कैसे करनी है, हर की व्हाट आर द सोर्स ऑफ पब्लिसिटी, ये सारी चीजें फ्रेंचाइज सपोर्ट में रहेगी। यूनिक ब्रू फ्रेंचाइज सिस्टम, सुपर्ब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, कंप्लीट असिस्टेंस इन फ्रेंचाइज डेवलपमेंट एंड डिजाइन, आपको सारी चीजों में फ्रेंचाइज डेवलपमेंट में और डिजाइनिंग में सपोर्ट रहेगा कंपनी का। फ्रेंचाइज कैन गेट टू नो अबाउट द फूड एंड बेवरेज, आपको सारी चीजें टेक्निकली समझाई जाएगी कि फूड एंड बेवरेज के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाएगा, ऑपरेशन प्रोसीजर आपको अच्छी तरह से समझाई जाएगी। द स्कोप फॉर ग्रोथ इज अनलिमिटेड, आपका जो ग्रोथ रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा। एज द कंपनी इज ऑल्सो ओपन फॉर वेरियस सजेशंस टुवर्ड्स अ म्यूचुअल एंड प्रोएक्टिव ग्रोथ वेयर इवन द फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैव अ से। दूसरी ब्रांच में जैसा कि होता है कि आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, हमारे भी स्टैंडर्ड्स है, एसओपीज है, बट उसमें हम क्लाइंट को भी चांस देते हैं कि पार्टनर्स के भी सजेशंस लेते हैं, पार्टनर्स को कैसा चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमारे क्लाइंट है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी गई है। योर टैलेंट एंड डेडिकेशन along with our specialty design franchise systems and highly evolved management and operational expertise create the most rewarding and dynamic recipes towards success and triumph in business. So don't wait and grab this opportunity to foray into the most rewarding and wholesome category of business. It's recession proof, it's fun, it's enjoyable, every day is a learning experience, every day is a life becomes happening, and above all you are the star in this endeavor. तो ये सारे बेनिफिट्स है यूनिक ब्रू फ्रेंचाइज लेने के। आपको फ्रेंचाइज सपोर्ट जो है, यूनिक ब्रू की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। अभी मैं आपको हमारे जो 4 बिजनेस मॉडल है उसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ कि 4 बिजनेस मॉडल में क्या क्या इंक्लूड है, क्या इन्वेस्टमेंट रेंज रहेगा, आपका क्या मंथली एक्सपेंसेस रहेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको मेन्यू भी बताऊंगा। Is the screen visible now? Hello? Yes, sir. Yeah, okay. ये यूनिक ब्रू का पूरा 4 मॉडल्स का बाइफर्गेशन है, तो आपको समझाता हूँ। जो फर्स्ट मॉडल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मॉडल, ए मॉडल, उसका एक्सप्रेस है, जैसे कि क्लाउड किचन मॉडल है, एक्सप्रेस है, काउंटर है, कैपिटल एक्सपेंस सब दिया हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर क्लाउड मॉडल का जो रहेगा, स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगा 200 to 350 स्क्वायर फीट है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपको कॉस्टिंग दिया हुआ है, सिविल एंड इम्प्रूवमेंट, अदर एसेट्स, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, फ्रेंचाइज फीस 3,50,000, जीएसटी 18%, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 11,38,000। उसमें आपको की फंडामेंटल्स क्या रहेगा आपके, जैसे कि क्या मेन्यू रहेगा, क्या कंसेप्ट रहेगा, आपका एक्सप्रेस टाइप का मॉडल रहेगा, टेक अवे टाइप का रहेगा, डिलीवरी फॉर्मेट रहेगा, स्टैंडर्ड हाई फुटफॉल लोकेशन, स्टैंडर्ड जहां पे ज्यादा हाई फुटफॉल रहता है उस लोकेशन पे रहेगा, क्राउडेड स्पेसिस पे रहेगा, फास्ट मूविंग मॉडल, डिलीवरी एंड एग्रीगेटर फ्रेंडली मॉडल, जोमेटो स्विगी ऐप से टाइप होता है। मेन्यू कैटेगरीज में हम अगर देखते हैं तो हॉट कॉफीज रहेगी, टी एंड कोल्ड कॉफीज रहेगी, आइस टी, सिपिंग ड्रिंक्स रहेंगे, सैंडविचेस रहेगी हर तरह से, ग्रिल्ड एंड फ्राइड बोथ, पिज्जास रहेंगे, बर्गर्स रहेंगे, सैलेड्स रहेंगी, पास्तास, मैगीज, फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा, और भी चीजें रहेंगी। डिलीवरी फ्रेंडली रहेगा, और कॉन्सेप्ट जो है ओनली प्रोडक्शन स्टाफ एंड क्लीनिंग क्रू, लो रेंट रहेगा क्योंकि आपका एरिया रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगा, लो एक्सपेंस मॉडल है, आपका एक्सपेंस भी बहुत कम रहेगा,
और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, बहुत अच्छा मेन्यू मिल रहा है। ये हमारा ए मॉडल है। दूसरा जो बिजनेस मॉडल है वो उसका सॉरी, जो फर्स्ट मॉडल का हम मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहेगा, मंथली एक्सपेंसेस आपके कैसे रहेंगे, जैसे कि मंथली प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा रहेगा क्लाउड मॉडल का। F&B सेल पर मंथ आपका, जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 4 to 4,50,000। कॉस्ट ऑफ F&B सेल पर मंथ जो रहेगा 1,80,000, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो हमने ऐसे टेक्निकली डिजाइन किया है कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, पिज्जा बर्गर्स, हम लोग कोई अगर बिरयानीज बनाते हैं, कुछ भी एनीथिंग लाइक इंडियन और फास्ट फूड और कॉफी, तो उसमें 28% से ज्यादा हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट आएगा नहीं। तो आपको जो मार्जिन रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका फूड का। और उसमें ये चीज भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखी गई है कि आपका टेस्ट प्रॉपरली मेंटेन हो और आपका जो आपका प्रॉफिट है वो भी अच्छे से आपको मिले। ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ रहेगा 2,70,000। उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, रेंटल, स्टाफ मील्स, मिसलेनियस, मार्केटिंग, जोमेटो स्विगी, राउंडेड सैलरी भी दिया हुआ है, टेलीफोन रहेगा। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस आपका 1,81,000 आएगा। इन नेट इनकम पर मंथ आपका 89,000 है। एनुअलाइज इनकम आपका 10,68,000 रहेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है 11,38,000। उसमें से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 94% मिल रहा है। पेबैक आपका 1.1 ईयर में है। तो बहुत ही अच्छा, आपका पेबैक पीरियड भी बहुत फास्ट है, प्लस आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट और रेसिपीज को डिजाइन किया है ताकि आपको उसमें अच्छा मार्जिन मिले। फिर हमारा जो दूसरा मॉडल है यूनिक ब्रू फ्रेश फूड कैफे मॉडल, उसका फाइनेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेस जो रिक्वायरमेंट है फास्ट फूड कैफे के लिए वो 400 to 550 स्क्वायर फीट है। अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा मशीनरी, इक्विपमेंट, सिविल इंप्रूवमेंट, अदर एसेट्स, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, फ्रेंचाइज फीस, जीएसटी, टोटल 21.8 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। उससे कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कौन सा एरिया हम लोग चूज कर रहे हैं, इंटीरियर में कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। दिस इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गिवन। उसमें जो हमारा की फंडामेंटल्स कैसा रहेगा, सिट डाउन टाइप का मॉडल रहेगा, सेल्फ सर्विस भी हो सकता है और सर्विस भी दे सकते हैं, टेक अवे एंड डिलीवरी फॉर्मेट रहेगा, मीडियम टू हाई फुटफॉल लोकेशंस पे रहेगा, शॉपिंग स्पेसिस, फास्ट मूविंग मॉडल, डिलीवरी एंड एग्रीगेटर फ्रेंडली मॉडल, जोमेटो स्विगी एक्सेट्रा, चिल जोन फॉर यंगस्टर्स, यंगस्टर्स के थोड़ा ये थोड़ा चिल जोन जैसा रहेगा, कॉलेज क्राउड ज्यादा रहेंगे इसमें, और रिटेल स्पेसिस में ये कर सकते हैं। मेन्यू कैटेगरी में रहेगा हॉट कॉफी, टी, कोल्ड कॉफी, आइस टी, सिपिंग ड्रिंक्स, सैंडविचेस, पिज्जा, फ्रेश डो, बर्गर, सैलेड, पास्ता, मैगी, फ्राइज, डिलीवरी फ्रेंडली रहेगा। इसमें सिजलर्स और थोड़ा चाइनीज भी ऐड होता है, हम लोग थोड़ा सिजलर्स चाइनीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें। कंसेप्ट जो रहेगा वो प्रोडक्शन स्टाफ एंड हाउस कीपिंग क्यों रहेगा, सिट डाउन मॉडल विद बेसिक सिटिंग के साथ थोड़ा सिट डाउन रहेगा। उसमें पार्टी भी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज वगैरह भी मना सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, मेन्यू की जो प्राइजेज रहेंगी वो बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगी। उसका हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एजम्पशन रहेगा ये इस तरह से रहेगा। आपका F&B शेयर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 lakhs पर मंथ। दिस इज फॉर द लोकेशन, बहुत अच्छे लोकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। कॉस्ट फॉर ऑफ F&B सेल पर मंथ रहेगा 2,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ आपका 4,20,000। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर 35,000। रेंटल, स्टाफ मील्स 20,000, मिसलेनियस 15,000, मार्केटिंग 20,000, सैलरी 1 lakh, टेलीफोन, इंटरनेट 1,500। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 2,46,000 है। आपका नेट इनकम पर मंथ रहेगा 1,73,000 अप्रॉक्स। एनुअलाइज इनकम रहेगा 20 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है 21 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा 99%। पेबैक है आपका 1 साल में पूरा इन्वेस्टमेंट पेबैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें फुटफॉल हाई रहेगा, एरिया बड़ा रहेगा, इंटीरियर थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और इसमें प्रोडक्ट की जो मेन्यू के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा रहेंगे। उसके बाद थर्ड मॉडल है इटालियन कैफे मॉडल। उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेस रिक्वायरमेंट जो रहेगा आपका 800 to 1,200 स्क्वायर फीट आपका इसका एरिया रिक्वायरमेंट। इससे कम भी होगा तो चलेगा, उसमें हम उस तरह से इंटीरियर डिजाइन करेंगे। आपका मशीनरी इक्विपमेंट 8 लाख, सिविल इंप्रूवमेंट्स 450, इंटीरियर 750, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस 3,50,000, फ्रेंचाइज फीस रहेगा 7,50,000, जीएसटी 18%। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 30 से लेकर 32 के बीच में रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट।
इसको अगर आप कम भी करना चाहें तो कम कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है हाउ व्हाट काइंड ऑफ इंटीरियर वी डू। इसमें की फंडामेंटल्स में रहेंगे, सिट डाउन टाइप का मॉडल रहेगा, फुल सर्विस मॉडल रहेगा, फुल्ली सर्विस रहेगा, मतलब ऑन टेबल सर्विस रहेगा, स्टाफ ज्यादा रहेंगे, रिलैक्सिंग स्पेस रहेगा, एम्ड एट यंगस्टर्स के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग स्पेस रहेगा। कॉर्पोरेट क्राउड्स भी हम लोग इसमें टारगेट करते हैं, मीटिंग्स के लिए आते हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट क्राउड विथ एम्बियंस एंड वाइब्स। मेन्यू कैटेगरीज में हॉट कॉफीज रेगुलर एंड स्पेशलिटी, टी रेगुलर एंड स्पेशलिटी, कोल्ड कॉफीज एंड आइस टीज, मिक्सोलॉजी बेस्ड ड्रिंक, लाइव बार विथ मॉकटेल। इसमें लाइव बार विथ मॉकटेल रहेगा, जहां पे लिकर की परमिट है वहां हम लिकर की परमिट लेके उसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस भी इंक्लूड करते हैं, जहां पे लिकर की परमिट नहीं है वहां पे नॉन अल्कोहलिक बियर सर्व होते हैं। सैंडविचेस रेगुलर, गवर्नमेंट, पिज्जा, फ्रेश डो, बर्गर्स रेगुलर एंड गवर्नमेंट, सैलेड, पास्ता, स्वीट, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, अप्रोक्स, मैक्सिकन और फ्राइड स्पेशलिटी रहेगी। कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो फुल सिट डाउन मॉडल विद सर्विस एंड डिनर वेयर, एक्सपीरियंस ड्रिवन मॉडल विद लाइव परफॉर्मेंसेस भी रहेंगे। इवेंट टू ब्रिंग सोशल क्राउड, इवेंट्स भी होते हैं सोशल क्राउड को ज्यादा गैदर करने के लिए, डीजे परफॉर्मेंस भी होता है, स्टैंडर्ड एक्ट्स, अदर इवेंट्स टू ब्रिंग क्राउड ऑन रेगुलर बेसिस पे क्राउड पे लाने के लिए इसमें हर तरह के अलग अलग तरह के इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ज्यादा क्राउड हो और ज्यादा इसमें फुटफॉल रहे। उसमें यूनिक ब्रू इटालियन कैफे मॉडल का आपको स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो 100 to 1200 स्क्वायर फीट है। उसके बाद आपका ये रफली जो F&B सेल पर मंथ है 9,50,000 हम लोग टारगेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ F&B रहेगा 3,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ 5,70,000 रहेगा। उसपे सारा आपका खर्चा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक का, गैस का, रेंटल, स्टाफ मिल, वेलफेयर, मार्केटिंग, सैलरी, टेलीफोन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपका टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ निकाल के आएगा 3,21,500। उसमें से नेट इनकम पर मंथ रहेगा आपका 2,48,500, एनुअलाइज इनकम रहेगा आपका 29 लाख, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है 32,35,000। उसमें से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा 92%, पेबैक आपका रहेगा 1.1 ईयर में, आपका 1 साल और 1-2 महीने में इन्वेस्टमेंट कवर होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट मॉडल है डी मॉडल, यूनिक ब्रू रेस्टो लाउंज मॉडल। दिस इज द लास्ट मॉडल, हमारा ये लास्ट मॉडल है। उसमें जो है लाउंज मॉडल में स्पेस रिक्वायरमेंट है 1,500 to 2,000 स्क्वायर फीट। ये बड़ा रेस्टोरेंट टाइप का मॉडल है, उसमें स्पेस रिक्वायरमेंट इसीलिए ज्यादा है, 1,500 to 2,000 स्क्वायर फीट। मशीनरी और इक्विपमेंट इसमें 12,50,000 है, सिविल इंप्रूवमेंट 8,50,000, इंटीरियर 18 लाख, उसको कम कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसिस 6,50,000, फ्रेंचाइज फीस 10 लाख है। और ये भी मॉडल है विथ लिकर, विदाउट लिकर, लिकर के साथ भी रख सकते हैं, विदाउट लिकर भी रख सकते हैं, बट डिपेंड ऑन लिकर लाइसेंस अगर हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, उसमें की फंडामेंटल्स जो रहेंगे सिट डाउन टाइप का रहेगा, फुल सर्विस मॉडल, रिलैक्सिंग स्पेस एम्ड एट यंगस्टर, कॉर्पोरेट क्राउड विद एम्बियंस एंड वाइब्स। मेन्यू कैटेगरी इसमें स्पेशली मेन्यू ज्यादा रहेगी, जैसे कि लाइव कॉफीज रेगुलर एंड स्पेशलिटी, इसमें लाइव कॉफीज रहेगी, टीज रेगुलर स्पेशलिटी, कोल्ड कॉफी, शेक्स एंड आइस टीज, मिक्सोलॉजी बेस्ड ड्रिंक्स, लाइव बार विद मॉकटेल, सैंडविचेस रेगुलर, गवर्नमेंट, लाइव पिज्जास, हमारे लाइव पिज्जास रहेंगे इसमें। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। फ्रेश डो रहेंगे, बर्गर्स रेगुलर, गवर्नमेंट, सैलेड बार रहेंगे, पास्ताज विद इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल ऑप्शन, इंटरनेशनल क्यूजीन्स रहेंगी, स्पेशल मेन्यूज रहेंगे। इंटरनेशनल क्यूजीन में मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का मेन्यू रहेगा, एक स्पोर्ट्स बार का मेन्यू दिखाऊंगा मैं आपको। कंसेप्ट क्या है इसका, फुल सिट डाउन लाउंज विद सर्विस एंड डिनर वेयर, प्रीमियम एक्सपीरियंस, आपको एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए ये मॉडल क्रिएट किया हुआ है। ड्रिवन मॉडल विथ लाइव इवेंट, स्पोर्ट्स स्क्रीनिंग, स्पेशल इवेंट्स लाइक डीजे इवनिंग, कराओके नाइट्स टू ब्रिंग प्रीमियम क्राउड को ज्यादा एंटरटेन करने के लिए, फुटफॉल बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह के इवेंट करते हैं। अदर इवेंट्स एंड फूड फेस्टिवल एक्सेट्रा ऑन रेगुलर बेसिस, कोलैबोरेशन विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्सक्लूसिव मॉडल। ये 4 मॉडल का बेसिक था। उसमें इसका दिया हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस एजम्पशन दिया हुआ है लास्ट डी मॉडल का। एरिया रिक्वायरमेंट 1,500 to 2,000। आपका F&B शेयर हम लोग टारगेट करेंगे नियरली 18 लाख। उसमें कॉस्ट ऑफ F&B आएगा 7 लाख to 7,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ रहेगा 10 लाख। उसमें से आपके ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे। आपका टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा 6,26,500। नेट इनकम पर मंथ रहेगा 4,53,500। एनुअलाइज इनकम आपका लेगा 54 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका 57 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 95% है, और पेबैक आपको 1 साल में और 1 महीने में, 2 महीने में आपका पेबैक हो जाएगा। तो ये चारों मॉडल का
आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्या खर्चा होता है, मंथली आपको क्या खर्चा होता है, आपको सेल कितना होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ये सारा बाइफर्केशन दिया हुआ है। अभी मैं आपको ये स्पोर्ट्स बार का जो मेनू मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्पोर्ट्स बार का मेन्यू इज विजिबल नाउ या यस सर। या स्पोर्ट्स बार का ये मेन्यू है। उसमें स्पोर्ट्स बार के मेन्यू में क्या थीम रहेगी कि किसी भी स्पोर्ट्स पे हम लोग थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, आइदर क्रिकेट, आइदर फुटबॉल, आइदर कबड्डी, आइदर हॉकी, आइदर एनीथिंग, मतलब कोई भी थीम हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द कस्टमर। ठीक है। इसमें कॉफीज रहेंगी, इटालियन रहेगी, क्लासिक कॉफी रहेगी, आइस टी रहेगी, उसमें डॉल्फ डिलेटो, ऑन द रॉक और यूनिक ब्रू की सब स्पेशलिटीज है। उसमें फिर आपका मॉकटेल्स रहेगा। ठीक है, बहुत सारी मॉकटेल्स की वैरायटी, मार्गरिटाज रहेगी, कन्वेंशनल रहेंगे। कोल्ड सेंसेशन में आपको मोहितोज, बेवरेजेस, फ्रूट फ्रैपेस, स्लस। उसके बाद आपको ये स्टार्टर रहेंगे। स्टार्टर में भी ग्लोबल रहेंगे, ग्लोबल स्टार्टर रहेंगे, एशियन स्टार्टर रहेंगे, इंटरनेशनल स्टार्टर रहेंगे, पान एशिया स्टार्टर रहेंगे कि स्टार्टर हर, मतलब इससे मिक्स क्यूजिन रहेगी, वर्ल्ड की सारी क्यूजिन इसमें मिक्स रहेगी और उसको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ प्रिपेयर होता है। सैलेड रहेंगे, सूप्स रहेंगे, आपको पिज्जास रहेंगे, फिर आपका चाइनीज भी रहेगा इसमें, फिर आपका मैक्सिकन रहेगा, इसमें बर्गर्स रहेंगे, ग्रिल्ड और फ्राइड बोथ काइंड ऑफ बर्गर, पास्ता, सिजलर्स। इसमें ब्रेकफास्ट भी रहेगा, सैंडविच भी रहेगी, डेजर्ट्स भी रहेंगे। आपका पूरा मेन्यू है। ये पूरा मेन्यू दिया हुआ है। फिर आपको मैं दूसरा एक मेन्यू दिखाता हूँ। One second, I show you the menu. ये यूनिक ब्रू का फास्ट फूड का मेन्यू है, फास्ट फूड कैफे बॉटल का। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूं कि हमारे पास मेन्यू में दो ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको प्योर वेजिटेरियन फॉर्मेट करना है तो हम लोग प्योर वेजिटेरियन फॉर्मेट भी कर सकते हैं, अगर नॉनवेज करना है तो नॉनवेज भी कर सकते हैं। बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। आपको ये कॉफीज रहेंगी, क्लासिक, कोल्ड, ऑन द रॉक। फिर आपका पिज्जास रहेंगे फास्ट फूड में, बहुत सारे पिज्जास की वैरायटी है, ये यूनिक ब्रू की स्पेशलिटी है पिज्जास की। उसके बाद बर्गर्स रहेंगे, फ्राइड रहेंगे, ग्रिल्ड रहेंगे। उसके बाद आपका सैंडविच रहेगी, ग्रिल्ड, डिप्स रहेंगे। उसके बाद आपका ये बहुत अलग वैरायटी रहेगी सैंडविच में भी, वेज एंड नॉन वेज बोथ। पास्ताज रहेंगे, इटालियन, इंडियन, सिजलर्स रहेंगे, रैप्स रहेंगे, नाचोस रहेंगे, नूडल्स रहेंगी। उसके बाद आपको इसमें कोल्ड सेंसेशन में मॉकटेल्स, फ्रूट फ्रैपेज, मोहितो, स्लस, संडेज, एडॉन्स, मील्स एंड कॉम्बोज भी होंगे सारे। तो ये पूरी मेन्यू की डिटेल मैंने दे दी। उसके बाद आपको एक थोड़ा लास्ट मेन्यू में दिखाता हूँ। ये जो मेन्यू है स्पोर्ट्स बार का, उसमें मैंने पहले थोड़ी चीजें, मैं इसमें और भी एक्स्ट्राज भी है जो मैं आपको दिखा दूं। इसमें ब्रेकफास्ट भी दिया हुआ है, जैसे कि आपको ब्रेकफास्ट कॉम्बो है, मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स, एसोटेड फ्रूट, स्ट्रॉबेरी क्रेपेस, चॉकलेट बनाना, ओटमील, एग्स एंड एग्स अगर नॉनवेज मेन्यू है। अगर नॉनवेज नहीं है तो उसमें दूसरी वैरायटी रहेगी, सिजलर्स रहेगा। फिर उसमें वेज नॉन वेज सैलेड्स रहेंगे, सूप्स रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका पास्तास, फिर उसके बाद पिज्जा, स्टार्टर्स, ग्लोबल स्टार्टर्स, बर्गर, उसके बाद सैंडविचेस, उसके बाद नाचोस, टाकोस, ब्यूरिटोज, रैप्स। फिर आपका चाइनीज रहेगा, उसके बाद कॉम्बोज रहेंगे, मिडल ईस्ट स्पेशल मेन्यू भी रहेगा उसमें आपका, जैसे कि फ्राइड राइस कॉम्बो हो गया, फिर आपका पनीर टिक्का हो गया, मलाई पनीर टिक्का हो गया,
रेशमी कबाब, पहाड़ी टिक्का, फिर शोरमा वगैरह भी रहेगा, पनीर शोरमा, चिकन शोरमा। कोल्ड सेंसेशन में आपका सब कॉफीज आएगी, कोल्ड कॉफीज, मोहितो, स्लस, डेजर्ट्स आएंगे। ये सारे डेजर्ट जो रहेगी हम लोग खुद बनाते हैं, कहीं से बाहर से नहीं करते हैं, लाके नहीं बेचते हैं, हम लोग खुद ये सारी चीजें कैफे के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर तैयार होती है, हम लोग खुद बनाते हैं, हमारे शेफ जो रहेंगे वो खुद बनाएंगे। उसके बाद मील फॉर वन, मील फॉर टू, बर्गर कॉम्बो, टाको कॉम्बो, ये सारी चीजें दी हुई है। तो ये पूरा आपको मेन्यू के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो लास्ट चीज मुझे आपको बोलनी है ये है कि अभी जो हमारे एक यूनिक ब्रू के बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, वो ऑफर ये है कि अगर आप 31 जून से पहले अगर कोई ये एज ए टोकन देके डील अगर फाइनलाइज करते हो तो आपको इसमें बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोविड-19 ऑफर है। कोविड-19 ऑफर यूनिक ब्रू का जो है वो है, we are offering special lockdown discount if you finalize the franchise deal with us before 31st of June 2020, then you will get 30% off on franchise fees। आपको 30% ऑफ मिलेगा फ्रेंचाइज फीस पे ऑन ऑल बिजनेस मॉडल। कोई भी बिजनेस मॉडल आप चूज करते हो, आपको किसी भी और बिजनेस मॉडल में आपको 30% फ्रेंचाइज फीस पे ऑफ मिलेगा, प्लस मैनी अदर ऑफर, जैसे कि हम आपको मिनिमम सेल की गारंटी देंगे कि आपका 50,000, 1 लाख, आपका मिनिमम 2 लाख ये सेल रहेगा बिजनेस मॉडल के हिसाब से। उसके बाद आपका डिपॉजिट जो रहेगा वो रिफंडेबल रहेगा। जो फ्रेंचाइज फी में जो डिपॉजिट रहता है वो आपको रिफंडेबल रहेगा, एग्रीमेंट के बाद आपको रिफंड किया जाएगा। ठीक है, उसका एग्रीमेंट में प्रॉपर राइटिंग में होगा सारी चीजें। मास्टर फ्रेंचाइजीज आर इन्वाइटेड। आपको किसी को अगर मास्टर फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है, पूरे स्टेट की मास्टर फ्रेंचाइजी लेनी है, तो इसमें भी बहुत अच्छा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, गारंटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा विथ रिफंडेबल फ्रेंचाइज फीस। उसमें भी पूरा आपको रिफंडेबल फ्रेंचाइज फीस है मास्टर फ्रेंचाइजी में भी। सो सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट विथ अस एंड अर्न मोर प्रॉफिट। आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक तरह से सिक्योर है, आपको बहुत अच्छा मैनुअल बाइंड मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल मिल रहा है, सपोर्ट हम लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग का है कि एथिक्स के बेस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको प्रॉफिट बनाना है, हमें आपको आगे लेके चलना है। अगर आप प्रॉफिट बनाएंगे, अगर क्लाइंट प्रॉफिट बना रहा है तो ही कंपनी आगे बढ़ेगी। वो एकदम सीधी सी बात है, वो एवरीवन नोज कि अगर क्लाइंट का फ्रेंचाइज का जो आउटलेट है वो अच्छा चल रहा है तभी हम कंपनी भी ग्रो करेगी। तो हम लोग के वैल्यूज है कि कंपनी क्लाइंट को हर तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट दे, एथिक्स पे काम करे, कोई हाइड एंड सीक पॉलिसी नहीं है हमारी। उसके बाद आपको हर चीज प्रॉपरली समझाई जाएगी, प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाएगी। तो दिस वाज द प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय एंड। और जिनको भी इंटरेस्ट है वो लेटर ऑफ बिजनेस इंक्वायरी फॉर्म है, वो आपको फिलअप करके हमें ईमेल कर देना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। हेलो। Thank you, Mr. Nirav. So Yeah. there is a question. Friends, if you have any question, please raise your hand in the chat section and you can ask. Nirav ji, there is a person whose name is Nitish Bansal, Dehradun se. He wanted to ask how much investment for war model. Sorry, how much investment for QSR मॉडल? अच्छा, कियोस्क मॉडल का सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट मॉडल जो, हाँ जी, हेलो सर, कैसे है सर? नहीं नीरज जी, प्लीज गो अहेड, प्लीज बताइए। हाँ सर, मैं जो कियोस्क मॉडल का जो फर्स्ट बिजनेस मॉडल जो है ए मॉडल, उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा सर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो 10 लाख रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख में पूरा आपका सेटअप होगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आपको साइट सिलेक्शन से लेके इंटीरियर से लेके मशीनरी इक्विपमेंट मेन्यू। राजू दीक्षित फ्रॉम मथुरा वो जानना चाहते हैं कि फोको मॉडल है क्या यूनिक ब्रू का? इज देयर एनी फोको मॉडल ऑफ यूनिक ब्रू? या फ्रेंचाइज ऑपरेटेड कंपनी ओन्ड ये मॉडल अवेलेबल है। और फ्रेंचाइज कोको फोको दोनों मॉडल पे हम लोग काम करते हैं।
कोको मॉडल के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट कोको मॉडल, ये जो सारी चीजें हमने एक्चुअली, आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो भी समझाया सारे मेन्यूज मॉडल कोको मॉडल के लिए ही है। कोको मॉडल फ्रेंचाइज ओन, कंपनी ऑपरेटेड। मनोज वर्मा फ्रॉम दिल्ली, वो जानना चाहते हैं कि आपका क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट का और एक बार जानना चाहते हैं। क्लाउड किचन में सर क्या रहेगा, आपका एरिया रिक्वायरमेंट जो रहेगा, ठीक है, जो वो बहुत कम रहेगा, 250 से लेके 200 से लेके 300 400 स्क्वायर फीट का। उसमें आपका 10 to 12 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसमें थोड़े बहुत सिटिंग रहेंगे, डिपेंड करते हैं हम लोग कितना बड़ा एरिया लेते हैं। अगर क्या होता है कि कई बार क्लाइंट थोड़ा बड़ा एरिया चूज करता है फर्स्ट मॉडल के लिए भी, तो थोड़े सिटिंग्स रहेंगे उसमें। मेन्यूज में जैसे मैंने समझाया है, आपका सैंडविचेस, बर्गर्स, पास्ता, पिज्जा, ये सारी चीजें रहेगी। और आपका टेक अवे टाइप का फॉर्मेट रहेगा, कियोस्क एक्सप्रेस काउंटर रहेगा। आप जैसे कि मेट्रो स्टेशन पे भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है मेट्रो स्टेशन पे, अगर हमको मौका मिल रहा है तो मेट्रो स्टेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। और इसका इन्वेस्टमेंट भी काफी कम है, 10 to 12 लाख से मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और इसमें अभी आपको 30% ऑफ मिल रहा है, प्लस आपको जो डिपॉजिट रहेगा वो आपको रिफंडेबल है एग्रीमेंट टाइम के बाद। तो इसमें कोई पूरा आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, देयर इज नो रिस्क, इट्स रिस्क फ्री बिजनेस आई थिंक। ओके यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेजेंट कर दीजिए, और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी कांटेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। Okay, Nirav ji, there is Shankar Dubey from Agra. He wants you to explain the guarantee amount of FOCO model, if there is any minimum guarantee in the FOCO model. सर जो मैंने जैसे कि समझाया, फोको मॉडल का जो गारंटी, आप कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करते हो, जैसे कि हमने जो आपको मिनिमम गारंटी, मैंने जो एक्सेल शीट में आपको समझाया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले, जो एक्सेल शीट में कि जो मिनिमम गारंटी है वो आपका ए मॉडल, बी मॉडल, सी मॉडल और डी मॉडल, हर एक का मिनिमम सेल की गारंटी अलग अलग रहेगी, क्योंकि हर एक का एरिया रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक का फुटफॉल अलग है, हर एक का लोकेशन अलग है। तो वो सारी चीजें हम लोग आपको प्रॉपर डिस्कस करके सारी चीजें हम लोग आपको गेट बैक कर सकते हैं, सारी चीजें आपको समझा सकते हैं। आप आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी प्लीज ड्रॉप कर दीजिए, और हम आपको कांटेक्ट करके बताएंगे कि कैसे उसमें मिनिमम सेल की आपको एश्योरिटी किस तरह से दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। सारी चीजें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। आप प्लीज आपका फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। ओके थैंक यू सर। बस किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेजेंट पे क्लिक कर दीजिए। Friends, if you have any questions, please ask. The founder and the director is with us to answer all your questions. किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेजेंट कर दीजिए। नीरव जी, गौरव दीक्षित हैं पुणे से। वो जानना चाह रहे हैं कि सेल्स सपोर्ट एंड ट्रेनिंग में आपका क्या रोल रहेगा। सर आपको, आप जो ट्रेनिंग जो रहेगी, स्टाफ की ट्रेनिंग देगी, वो ऑन साइट ऑफ साइट दोनों ट्रेनिंग देगी उनको। हेड क्वार्टर पे हमारा जो सूरत जो मेन ऑफिस है, मेन जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे उनके स्टाफ को पूरी सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। फ्रॉम द किचन की सारी ट्रेनिंग, रेसिपीज, फूड कैसे बनाते हैं, कैसे सारी चीज़ों को मतलब मैनेज करना है। उसके बाद जो स्टाफ रहेगा, ठीक है, उनको हम जब वहाँ लॉन्चिंग के टाइम पे वहाँ लाएंगे, ठीक है, आउटलेट पे, उस जगह पे भी हम लोग उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे हर चीज की, जैसे कि अप सेलिंग स्किल की, फिर कैसे लाइक ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस, उसके बाद कॉफी कैसे बनाते हैं, उसके बाद फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, कंपनी की पॉलिसी क्या है, उसके हिसाब से कैसे काम करना है। ये सारी चीज की ट्रेनिंग हमारे जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, मिस्टर यश भट्ट, मिस्टर रोहन भट्ट, वो उनको प्रॉपर ट्रेन करेंगे। और ट्रेनिंग देने के बाद ही उनको
आप पे ऑन साइट जब लॉन्चिंग होगा तब वहां उनको प्रेजेंट करेंगे लॉन्चिंग के 5-6 दिन से पहले। Thank you, sir. Thank you. Neeraj from Indore, he wants to understand the renewal fees and franchise terms. सर रिन्यूअल फीस इज नथिंग, रिन्यूअल फी आपको कुछ पे नहीं करना है। अगर आप अभी जैसे कि फ्रेंचाइज ले रहे हो, अभी आपको जो फ्रेंचाइज फी पे करना है वही करना है। रिन्यूअल आपको कोई फ्रेंचाइज फीस या रिन्यूअल कोई फीस आपको पे नहीं करनी है, बिकॉज द रीजन इज दैट रिन्यूअल में आपको डिपेंड करता है कि लाइक जैसे ऑब्वियसली हमारे आपके रिलेशन आप 7 साल के बाद कैसे रहेंगे, हम आप कैसे कंपनी के वैल्यूज को ऑनर करोगे, हम लोग आपको कैसे सपोर्ट देंगे, ये सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है रिन्यूअल प्रोसेस। रिन्यूअल का चांस एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी को देते ही देते हैं, बट डिपेंड करता है उन पे कैसा रिलेशन मेंटेन रखा है थ्रू आउट द फ्रेंचाइज टेन्योर। और उसके बाद रिन्यूअल का कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरा क्या पूछा, आई फॉरगॉट, सेकंड वाज वन विश्वजीत का कोई क्वेश्चन है? No, one moment, sir. The franchise terms, sir जी, the franchise terms पूछना चाहते हो? हाँ, फ्रेंचाइज जो टर्म है वो 7 इयर्स का रहेगा सर, एग्रीमेंट 7 इयर्स का रहेगा फॉर द टाइम ऑफ 7 इयर्स, और जो मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट रहेगा वो 10 इयर्स का रहेगा। Okay, thank you. विश्वजीत जी बोलिए आपका क्वेश्चन। Hello, हेलो, यस सर। sir. Is any franchise available in Chennai? चेन्नई में तो नहीं है सर, बट हमारा त्रिवेंद्रम में एक आउटलेट है सर, त्रिवेंद्रम। Okay, because I stay in Chennai. नो, इट इज इन त्रिवेंद्रम। Oh, okay. त्रिवेंद्रम में हमारा आउटलेट है सर। Okay, any idea of opening in Chennai? या वी आर ओपन फॉर चेन्नई एज वेल, वी आर ओपन फॉर पैन इंडिया। Pan India. Okay. या वी आर ओपन फॉर पैन इंडिया। Okay, sir. ओके, एनीथिंग एल्स सर? Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू। सर प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा, चैट बॉक्स ड्रॉप में, तो आपको आफ्टर दिस वेबिनार हम कांटेक्ट करेंगे। And Nirav ji, there are a lot of people who have joined in late. They Okay. want to understand the FOCO model one more time. देखिए, ये फोको मॉडल जो रहेगा, जैसे कि ये हर सारी चीजें जो हमने समझाई, फोको मॉडल रहेगा फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड। फ्रेंचाइज ओन में क्या रहेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट, आप क्लाइंट एज ए क्लाइंट यू आर गोइंग टू डू द इन्वेस्टमेंट, कंपनी आपको हर चीज का प्रॉपर सपोर्ट देगी, फ्रॉम द स्टाफ, ट्रेनिंग, वेंडर मैनेजमेंट, इंटीरियर मैनेजमेंट, उसके बाद प्री ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट, और उस थ्रू आउट द एग्रीमेंट जो कंपनी को आपको सपोर्ट देना है, सारी चीजें सपोर्ट आपको कंपनी करेगी। उसके बाद 7 साल के साथ आपका जो डिपॉजिट रहेगा वो आपको रिफंडेबल रहेगा, और अभी आपको फ्रेंचाइज फी पे 30% ऑफ मिलेगा। और जो भी सपोर्ट देना है फोको मॉडल में, कोको मॉडल में, इट इज गोइंग टू बी द सेम। हमें अल्टीमेटली आउटलेट को बहुत अच्छी तरह से चलाना है, उसको अच्छा सेल आना चाहिए, उसको अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और वही मेन मोटो है कंपनी का कि आउटलेट प्रॉफिट कमाना चाहिए, किसी भी हाल में प्रॉफिट कमाना चाहिए। बिजनेस गाइडलाइंस हम आपको सब चीज प्रोवाइड करेंगे, कैसे आउटलेट को चलाना है, सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। स्टाफ जो रहेगा वो हमारा रहेगा, हम आपको स्टाफ की सैलरी आप पे करोगे, स्टाफ के आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टाफ को अच्छे से, सारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनके स्टाफ के रिप्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी ही लेगी, कंपनी ही आपके रिप्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगी। कोई स्टाफ अगर छोड़ देता है तो कंपनी लुक आफ्टर करती है कि आपको दूसरा स्टाफ इमीडिएट बेसिस पे मिल जाए। तो ये सारी चीजें फोको मॉडल की है, और ये हम जो अभी जो ऑफर दे रहे हैं, जो या जो मैंने जो प्रेजेंटेशन पूरा दिया वो फोको मॉडल के लिए ही था। बट अगर कोई कोको मॉडल के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो दे कैन ड्रॉप देयर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड वी विल गेट बैक टू यू वेरी सुन। Thank you, Mr. Neerav. उसके अलावा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है फोको मॉडल के लिए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग operations, regarding expenses, regarding anything, then you can ask, but this whatever I have explained is for only FOCO model only. So friends, please share your contact details and the email ID with the founder CEO. He will get touch base with you, and I can also share his number if you have any further doubts, inquiries, or queries, or you want to close the franchise outlets with him.
you can directly reach out to Nirav, who is the founder and CEO of this unique brew cafe. His number is 972532955. I repeat, his number is 972532955. And dear friends, Franchise Apply has done more than 80 plus webinars in the recent 70-75 days. So I'm sure you are all enjoying the sessions. Our intention is to create a successful brand and an investor story. And like I see, most of you have joined in late. So not to worry, we will share a link in the chat section. You can visit our website, you can subscribe our YouTube link, and you can get access to the complete details one more time. And if you have any questions, you still have time. You can even now ask. Else, I have shared the founder's number with you. You can directly connect with him. His number again, 972532955. थैंक्स अ लॉट नीरव जी, थैंक्स अ लॉट Thank फॉर you. दिस वंडरफुल सेशन। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने ब्रांड के बारे में। Okay. So friends, like always, hope you have enjoyed today's session too. Our next webinar session is tomorrow at 4, and it is in the stream of consulting. The brand is called SMBA Consulting. So looking forward to meet you there. Thank you. Thank you.